अनुष्का टीकेडी हेलो, आशिका हेलो, शशि टीकेडी हेलो, जानवी शर्मा, बलदेव दी हेलो, आशीर्वाद हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज हमारे साथ बहुत ही एक ग्रेट पर्सनालिटी है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट भी हैं। सो हमारे साथ आज इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं आदीप मोहम्मद। सो वेलकम आदीप। सो वी कैन सी के लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। सो हम वेट कर सकते हैं 2 मिनट्स के लिए एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, जसप्रीत चोपड़ा हेलो, नहला हनीफ हेलो, Rajoya Dope hello, Kill the Switch hello, welcome everyone. Ranjit 2324 hello, welcome. Welcome Lachus, welcome Vaishnavi, welcome hello. ओके तो एक छोटा सा अपडेट है कि जो भी मेंबर्स यहाँ पे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं वो आदीप से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड वो क्वेश्चंस को हम बाय द एंड ऑफ द सेशन लेंगे, राइट? तो एंड में जाके आदीप कुछ क्वेश्चंस को आंसर जरूर कर सकते हैं। सो इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे Q&A क्वेश्चन में जाके पूछ सकते हैं। वेलकम हरसिमरन, रिया वेलकम हेलो। ओके सो टाइम है 7:05 सो वी कैन स्टार्ट। सो वेलकम आदीप, वेलकम टू द फिटनेस वॉरियर सेशन। सो सबसे पहले काफी लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, सो सभी के लिए एक छोटी सी इंट्रो अगर आप देना चाहें तो प्लीज। Yeah, sure. My name is Adib Mohammed. I'm from Arapura, native of Kerala. My father is a sportsman too. My father's name is Sunir Ashram. My mother is Sabida. She's a housewife, and I'm I'm studying in third year degree BSc Industrial Chemistry in Kerala University. I have done my high school in MVHS Tundathil from Trivandrum, and my 7th to 10th class I studied in Kozhikode under sports hostel. And I have one brother, younger brother. His name is Afrin Muhammad. He is also a taekwondo athlete, now a hostel inmate of Council, Trivandrum Council. And my cousin is also a taekwondo athlete. His name is Akias Muhammad. He is also from Trivandrum Sports Council under the coaching of Shai sir. Okay, great. So you had been training in Trivandrum, right? So where were you training at? Yeah, Trivandrum LNCP under Badisar and Bala Madam. I first started my career from, I have started my career in karate. I have joined karate for 3 to 4 years. Then I came to taekwondo. From my 6th age onwards, I came to taekwondo. I started my taekwondo career. Then I joined council under Kerala State Sports Council from at Kozhikode. There I played around 4 to 5 years for Kozhikode. Then I transferred to LNCP Sai under Balasar and Bala Madam. Now I am continuing there. Okay, right. So what are your future plans, Adip? Now I am selected to Indian Army Services Team in Goa Signals. So I'm looking forward to participate more international games and bring more medals to and glory for India. That's my dream now. Great, great, great. So how has the shift been? Means from sports background to a direct shift towards army. Although it had been a lot more similar, means army and sports, they are comparative, but there had been a lot of changes. Like sports is something you have just like 2 workout sessions, but army is a lot more different. So just share something about your army experience. Yeah, both are very different. मतलब आर्मी होता है वो जो बहुत काम करता है उसमें, हम सिर्फ हॉस्टल में सिर्फ 2 बार वर्कआउट करना है बस, सुबह और शाम को। आर्मी में ऐसे नहीं है, हमको हर दिन काम करता है पड़ेगा। नॉट ओनली माई गेम want to do jobs other than taekwondo also. Right. Just workouting from 5 to 7, then doing army work. तो क्लासेस है उधर का, वो 10 to 12 होता है, फिर 2 to 4 होता है। उसके बाद हमारा taekwondo ट्रेनिंग करना है 5 to 7। उसके बाद हमारा जो पर्सनल काम करता है वो करने के बाद सिर्फ रेस्ट मिलेगा बस। Great, great, great.
So Adip, हम जानना चाहेंगे कि how was your first taekwondo class like? If you remember something like shifting from karate to taekwondo, how was the first experience of the first day? या कराटे मीन्स फुल कॉन्टैक्ट गेम है। उसमें कुछ हमारा फाइटिंग करने के टाइम और कताश करने के टाइम, फाइटिंग मतलब हमारा ओपोनेंट और हमारा पास कुछ पैड वगैरह कुछ नहीं है। ये फुल कॉन्टैक्ट गेम होता है कराटे मतलब। वो जो बहुत इंजरी वाला गेम होता है ताइक्वांडो कराटे। बट शिफ्टिंग ताइक्वांडो मीन्स फॉर मी इट्स अ बिट हार्डर फॉर मी बिकॉज स्टाइल, वो स्टाइल होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है इसमें। वो कराटे आने के, कराटे से ताइक्वांडो आने के बाद बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, फिर एक लेवल पे पहुंच गया। Right. So great. So is your younger brother Afrin also into same background? Like, was he also in karate and then he shifted to taekwondo, or he's starting from No, taekwondo? directly came to taekwondo. Okay, so you might have been a great inspiration for him, right? Yeah, sure. So we would like to know about the best lesson that you have learned so far in taekwondo career and as well as karate, because you started, your roots are in deep in karate and then you shifted to taekwondo. So what is the best lesson that you have ever learned? Yeah, from sports I have learned much of 7 lessons, I think. One of the best is sacrifice. वो sacrifice मतलब वो मेरा स्लीप है। मतलब सोने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है हमको। सिर्फ Right. हम बचपन भी हो अभी भी हो, वो सोने के लिए बहुत टाइम नहीं मिलते हैं मुझे। वो तो एक आदमी का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस वो होता है, स्लीप। वी नीड टू सैक्रिफाइस आवर स्लीप फॉर आवर ग्लोरी, देन ओनली वी कैन अब बिल्ड और हमको वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पैशन। सेकंड वन इज पैशन। वो जो पैशन नहीं है तो हमको कुछ भी नहीं कर सकते। हमको जरूर पैशन चाहिए। वो जो क्या करना है उसका उसमें हमको पैशन होना चाहिए। देन ओनली वी कैन अचीव इट और वी कैन डू इट। देन होता है पेशेंस। पेशेंस में वो जो बहुत आदमी में देखा था, एक बार ट्राई किया, उसको रिजल्ट नहीं मिला, वो छोड़ दिया। मतलब उसको पेशेंस नहीं है। वो जो क्या करना है, उसको क्या मिलना है, उसको उसमें कुछ पेशेंस नहीं है। वो स्पोर्ट्स मतलब हमको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। देन ओनली वी कैन अचीव अवर गोल्स, वी कैन अचीव अवर टारगेट्स। देन ट्रस्ट, बहुत बड़ा होता है ट्रस्ट। वो we need to trust ourselves and we need to trust our coaches as well as and our parents. We need to trust our confidence. हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम जरूर ट्रस्ट करना है। देन ओनली वी कैन अचीव इट, वी कैन अचीव आवर टारगेट्स। फिर हमारा कोच को, वो जो उसका लाइफ सिर्फ ताइक्वांडो के लिए और हमारा हम के लिए वो छोड़ दिया। हमारा कोचेस का लाइफ वो पूरा टाइम हम के लिए वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ उसका खुद का लाइफ वो छोड़ दिया इसे हमारे लिए। वो ऐसे क्या बोलना है हमको, he just sacrificed his life for us. Yes, definitely. For our, to make us to a bigger position, they sacrificed their entire life for us. वो जो मेरा फर्स्ट कोच रामचंद्रन सर, फिर मेरा इधर का नेटिव का कोच रोशन सर, प्रदीप सर, फिर मेरा साई का कोच बाला गोपाल सर एंड बाला मैडम। उसका वजह से मैं अभी मैं कौन है वो ऐसे पहुंच गया, ये आदमी लोग का वजह से है। फिर होता है टीम वर्क। हम खुद ऐसे अकेला खुद कुछ भी नहीं कर सकते। हमके लिए एक टीम चाहिए। वो हमारा टीम है, हमारा साई का बच्चा लोग, मेरा टीम है। वो सब मतलब एक साथ हम वर्कआउट किया। आप भी वहाँ से हो, मैं हम सबको नहीं पता है इसलिए मैं बोला। इसलिए आपको पता है ना, एक टीम वर्क होता है। हमको सेल्फ में हमको कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा पार्टनर भी हमारा साथ ऐसे कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे मेरा बिगेस्ट पार्टनर है मेरा रेशमा दीदी। वो मैं कब से वहाँ गया, वो तब से मेरा साथी है मेरा रेशमा दीदी और मार्गू दीदी। ये दोनों है मेरा पूरा सपोर्ट वहाँ का। ये कुछ मिस्टेक किया, वो ऐसे गलत से वो ऐसे बोलेगा, वो गलत है ऐसे मत करो, वो ठीक करना है। मेरा गेम टाइम भी आकर गाली देता है, वो सुनकर मैं जीत जाता है। ऐसे ही है, होता है टीम वर्क। फिर कमिटमेंट, हम जो करना है उसमें हमको कमिटमेंट होना चाहिए। देन ओनली वी कैन डू इट। देन रेस्पेक्ट, वी नीड टू रेस्पेक्ट एवरीवन।
हमारा जूनियर हो, हमारा सीनियर हो, कोचेस हो, हमारा एल्डर्स हो, यंगर्स हो, सबको हम रेस्पेक्ट करना है. Then only we can earn something from it. These are the lessons I learned from my sports career. वाओ वाओ वाओ. तो ये 7 लेसन दीज आर ग्रेट. मीन्स जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दे शुड लर्न दी 7 लेसन. बिकॉज सैक्रिफाइस, Yeah, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में. बिकॉज अगर आप सैक्रिफाइस yeah, कर रहे हो, आपको दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती, तो वो सैक्रिफाइस जो आप कर रहे हो वो भी किसी यूज की नहीं है. सो दी 7 फैक्टर्स, जो 7 वैल्यूज जो आदित्य ने अभी शेयर की, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सो आई होप कि आप सभी ने नोट भी की होंगी ये 7 वैल्यूज. मैंने तो की हैं, सैक्रिफाइस, पैशन, रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ. तो अभी हम चलेंगे आदिप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ओके, हम सब स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट, कभी कभी 3 सेक्शन वर्कआउट हो जाते हैं. सो हैव यू एवर फाउंड स्कूल क्लासेस टू बी बोरिंग? कभी भी लगा है कि स्कूल हाँ, क्लासेस बहुत बोरिंग हैं? जरूर होता है कि मैं हॉस्टल में ही था. सबको पता है हॉस्टल वाला को स्कूल कैसे लगता है. मैं से बोल रहा हूँ स्कूल भी इम्पोर्टेंट है, हमारा एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के साथ. सिर्फ स्पोर्ट्स लेकर हमको कहीं नहीं जा सकते. हमारा भी साथ में एजुकेशन भी होना चाहिए. फिर भी एजुकेशन मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो सुबह 5 बजे उठता है, वो फिर 7 बजे 8 बजे तक वो वर्कआउट करता है. उसके बाद हमको स्कूल जाना है, वो 9 to 4 होता है. उसके बाद आके फिर 5 to 7 फिर वर्कआउट करना है. फिर उसके बाद हमारा खुद का काम करने के बाद फिर पढ़ाई करना है. ऐसे ही एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ. इसका बीच में एजुकेशन और स्कूल लाइफ मतलब बहुत बोरिंग होता है. फिर भी मैं खुद में बोल रहा, मैं सिर्फ स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं किया ज़्यादा. मतलब स्कूल लाइफ एक एक आदमी का सबसे अच्छा स्कूल लाइफ होता है, वो 10th और +2 वो लाइफ होता है. बिल्कुल. एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जीरो है, बिग जीरो है स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ सब. तो ऐसे एंजॉयमेंट वहाँ नहीं मिलता है हमको. हमारा एंजॉयमेंट मतलब हमारा ट्रेनिंग टाइम होता है, हमारा बैटल ग्राउंड मतलब हमारा कंपटीशन फील्ड में होता है हमारा एंजॉयमेंट. स्कूल टाइम बहुत बंक किया क्लास दोस्त वालों के साथ, फिर टीचर से बहुत गाली सुनता है. स्कूल लाइफ बहुत बोरिंग है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम साथ में ही रहे हैं, साथ साथ स्कूल गए हैं, तो पता है कि वो स्कूल टाइम से ज्यादा स्लीप टाइम होता था हमारा, जब लास्ट के बेंच पे जाके हम सो जाते थे. हाँ, तो सो टीचर्स भी बहुत सारा कोऑपरेट करता है उसको. हाँ, वो तो है बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स नहीं होते तो शायद हमारे नोट्स के फुल मार्क्स कभी ना लगते और ना कभी हम पास हो पाते हैं. जरूर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आदिप, हम पूछना चाहेंगे कि ओके, जैसे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है कि ऑल दीज इयर्स, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहो, दोबारा किसी टाइम में वापस जाना चाहो, तो वो एक वन मोमेंट कौन सी रहेगी जो आप चेंज करना चाहोगे अपनी लाइफ में? वो ऐसे ही बोलेगा तो मेरा ट्रस्ट होता है. मैं सबको आंख बंद करके ट्रस्ट करना करता है. मतलब वो जो कोई भी हो मेरा लाइफ में, कोई भी आए वो ऐसे बात किया मतलब मैं उसको बहुत बहुत जल्दी ट्रस्ट. ऐसे ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब मैं उसको क्या काम चाहिए वो मैं करके दिया देगा. अगर मुझे काम आएगा तो वो ऐसे मुझे देखा भी नहीं, ऐसे ऐसे जाता है वो. ऐसे एक और लाइफ मिलेगा तो वो मुझे ठीक करना चाहता हूँ. राइट राइट राइट. तो जितने भी हमारे साथ यहाँ पे प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, तो जरूर ध्यान रखें कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बेशक आपके वेरी टीममेट्स के इम्पोर्टेंट है. साथ हो. यस, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपकी रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके कोचेस के साथ हो, रिलेशनशिप इज मस्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो प्लीज उसे आप नोट डाउन करें. एंड ओके, सो आदिप, व्हेन इट हैज कम टू स्पोर्ट्स, तो आपकी ग्रेटेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम कौन रहा है? फैमिली, फ्रेंड्स, टीम, कोचेस, कौन रहा है आपका सबसे बड़ा सपोर्टिव जरूर मेरा सिस्टम? फैमिली है. मैं बोला है ना, मैं कराटे से आया. मतलब ताइक्वांडो में अभी मैं 16 years हो गया. अभी मैं सिर्फ मेरा उम्र 20 हो गया. देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम माय यंगर एज ऑनवर्ड्स आई एम इन स्पोर्ट्स. दैट्स मतलब मेरा फ्रेंड्स जरूर नहीं होता है, क्योंकि उस उम्र में फ्रेंड्स हमको नहीं लेकर जा सकते. मेरा ग्रेटेस्ट सपोर्टर है मेरा फादर. ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर इन माई लाइफ. वो मेरे को एक स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स में लेकर गया. अभी भी वो मेरा पीछे ही है. अगर वो पीछे है तो आई एम डैम कॉन्फिडेंट एंड अनबीटेबल. यस, फिर ग्रेट मेरा ग्रेट. सपोर्ट होता है मेरा सिस्टर. एलएनसीपी में वो है रेशमा दीदी और मार्गो दीदी. वो यस. दोनों मेरा पास में साथ में है, तो एक कंपटीशन आ गया वो मेरा मेरा पीछे है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता है गेम पे.
फिर मेरा भाई लोग भी है, मनु भैया और अक्षय भैया, उसका नाम भी मैं भूल गया था, सॉरी, वो भी है। अगर छोटा भी गलती ऐसे देखा तो वो जरूर बोलेगा ऐसे मत करो तुम, नेक्स्ट राउंड पे आगे आगे जाने के टाइम ऐसे मत करो, तो जरूर ठीक करना है। वो ये बहुत लोग है मेरा पीछे, मेरा लाइफ में मेरा पेरेंट्स है, फादर एब्सोल्युटली मेरा फादर है, उसके बाद है एक सब आएगा। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि हमने आपके फादर को देखा है, ही हैज बीन विद यू इन ऑल ऑफ द टूर्नामेंट्स, मींस वो हमेशा आपके साथ एक सपोर्टिव सिस्टम बन के रहे हैं। आप ही नहीं, आप ऑल केरला उसको जानता है। यस बिल्कुल, अभी पूरा मेरा केरला उम्र जानता 20 है। हो गया, फिर यस भी वो यस मेरा पीछे होता है। वही बात है ना, पेरेंट्स कभी हाथ वो उंगली नहीं छोड़ते, वो हमेशा उंगली पकड़ के चलते हैं, एंड दे आर ऑलवेज देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम हाँ। फॉर। सो अदीप, आपकी अभी जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आर्मी में भी हो, तो आपका जो नेक्स्ट गोल है, इमीडिएट गोल, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, सो आपका नेक्स्ट गोल क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं? आर्मी में अभी मैं एक जनरल ड्यूटी पोस्ट में जा रहे हैं, उसके बाद मुझे उधर का एसीसी मतलब ऑफिसर टेस्ट लिखकर एक ऑफिसर भी बनना चाहता हूँ। उसके लिए भी अभी मैं पढ़ाई कर रहा है, मेरा एसएसबी क्लियर करने के लिए वो भी ट्राई कर रहा है। और एक नॉर्मल और एक और नॉर्मल ड्यूटी और ऑफिसर का ड्यूटी रैंक है ना, बहुत फर्क पड़ता है हमको, एक ऑफिसर लाइफ और एक नॉर्मल लाइफ। मुझे वो ऑफिसर का लाइफ लेना चाहिए, फिर एनआईएस करके आर्मी का कोच भी बनना चाहता हूँ, मतलब एक नया टीम मुझे बनना है उधर। और बहुत सारा बच्चा लोग है ऐसे, माइंड में बहुत सारा डिटरमाइंड पर्सन होता है इधर केरला में, उनको भी एक पोजीशन देना चाहता हूँ उधर आर्मी में, इसलिए एनआईएस भी करके कोच भी बनना चाहता हूँ। फिर मेरा खुद लाइफ में इंटरनेशनल में एक ओलंपिक्स तक जा सकते, ओलंपिक्स है ड्रीम, उधर तक जा सकते हैं, मुझे नहीं पता है अभी आगे 2026 और 26 में आएगा कुछ गेम्स आएगा तो 25 में आएगा। अभी एक इंटरनेशनल मेडल जीतना है, फिर अभी ऑफिसर बनना है, सिर्फ यही है मेरा ड्रीम आगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जितने भी हमारे साथ मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप सभी आदिप को बेस्ट विशेस दें, क्योंकि उनके प्लान्स, उनके गोल्स एंड उनकी जो इंस्पिरेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत बड़ी है। उनके गोल्स अचीव करने के लिए जो डिटर्मिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। सो आई रिक्वेस्ट कि सभी उन्हें बेस्ट विशेस दें, कि बेस्ट विशेस आदिप कि आप नेक्स्ट लेवल तक जाएं, इंटरनेशनल पे बहुत सारे मेडल्स दें इंडिया को, एंड ऑफ कोर्स ओलंपिक्स तो हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ही। सो आदिप, जैसे हमें पता है कि लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया था, सो वन वर्ड फॉर लॉकडाउन, कि आपके लिए लॉकडाउन कैसा रहा? मींस अच्छा था, बुरा था? आप फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे सके कि ज्यादा रेस्ट पे ध्यान दे सके? आप में क्या चेंजेस आई? सो हाउ वाज लॉकडाउन फॉर यू? For me, it was a little bit good for me because I work very hard for clearing my basics. एक प्लेयर होता है वो सिर्फ बेसिक्स नहीं देखता है, वो सिर्फ खेलते खेलते उसका क्या, he just try to he just not try to clear his basics, just his focus is always uh, on क्या बोलता है, अचीविंग गोल्स, सिर्फ अचीविंग गोल्स में जब पीछे वो पड़ता है, उसका बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो कभी नहीं देखता है। ये मेरा लॉकडाउन टाइम दिन में मैं ऐसे ट्राई किया, मेरा सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बेसिक्स पुमसे क्लियर करने के लिए, बेसिक्स मूवमेंट्स करने के लिए। इसलिए अभी एक कंपटीशन आया था सीनियर स्टेट भी, उधर भी मेरा गेम बहुत सारा चेंज हो गया, उसका लॉकडाउन की वजह से है। उधर वर्कआउट किया मेरा भाई लोग के साथ, अफरीन और अकियास मेरा साथ में था, हर दिन हम वर्कआउट करता है, सिर्फ उसका वजह से अभी ट्रेन गेम चेंज हो गया। लॉकडाउन मेरे लिए थोड़ा अच्छा था, सबके लिए ऐसे नहीं है, वो काम भी बहुत सारा लोग का काम किया था, मेरे लिए थोड़ा अच्छा था। ओके ग्रेट। सो अदीप, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस। तो आपके लिए अगर स्ट्रेस है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, फैमिली स्ट्रेस आ जाता है, एट द एज ऑफ 20 आपको अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है, आप एट अ सर्टेन स्टेज आके 18 के ऊपर जब हम चले जाते हैं तो हमें लगता है दैट वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन अ फैमिली, वी नीड टू डू समथिंग एट आवर ओन। तो उस टाइम पे आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? स्ट्रेस मतलब मैं मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन क्या हम करेगा तो हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, और सुबह सुबह करना है बस। रेशमा दीदी के हाथ एक क्वेश्चन में एक्सपेक्ट किया था, वहाँ भी देखा मैं। फिर हमको हमारा एक गोल हम रखा तो हमारा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए हम उस गोल से, फिर हमको स्ट्रेस में बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक गोल में जाएगा तो और अदर रिलेशनशिप ऐसे फैमिली का चक्कर में पड़ा, और कुछ भी मत हम
फोकस कर रहा, सिर्फ हमारा गेम में हम फोकस कर रहे हो, एक कंपटीशन आएगा तो उसके लिए हम फोकस करो बस, फिर हमको स्ट्रेस फ्री माइंड होता है, गेम भी अच्छा से दे सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपके लिए बहुत सारी विशेष भी हैं हमारे पास, एंड लक्ष्मी भी कह रहे हैं कि ही विल डेफिनेटली विन मोर एंड मोर मेडल्स, सो बेस्ट विशेस आदिप। या एंड ऑफ थैंक यू, शी कोर्स, इज माय क्लासमेट, कॉलेज मेट है वो, ओके ग्रेट। सो वन ऑफ द ऑब्वियसली बेस्ट क्रिकेट काफी, प्लेयर भी है केरला यूनिवर्सिटी का। वाओ वाओ वाओ। सो हैट्स ऑफ टू लक्ष्मी, आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज कि आपने ज्वाइन किया है। एंड बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं, बेन कोरिया, अभी पांडे एंड बेन कोरिया। डोंट फॉरगेट गाइस, आदीप का के आज के सेशन के बाद जो नेक्स्ट लाइव सेशन होने वाला है वो है बेन कोरिया के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। एंड बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ज्वाइन हुए हैं, टोनी स्टार्क वेलकम, नीलिमा वेलकम, अभी पांडे वेलकम, रेशमा दीदी वेलकम, टीकेडी मनीषा, गीतांजलि वेलकम। ओके, सो रेशमा दीदी ने लिखा है बिग फैन, ओके ग्रेट। सो आदीप आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है। सोलर पीसीज तो हेलो, उसका फैन होता है। हेलो अहमद एम हेलो। ओके, सो हम आगे चलते हैं आदीप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके हम डेली वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग है इवनिंग है, तो बॉडी कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती है कि ओके हम सुबह उठे तो बॉडी बहुत टायर्ड फील हो रही है, वी फील टायर्ड एंड वी डोंट फील लाइक डूइंग वर्कआउट, तो उस टाइम पे आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो कि आप डेली वर्कआउट करो? हाँ, वो ऐसे में एक मेरा मन में एक ऐसे एक वो आएगा, मतलब वो जो आज मैं किसी को, मतलब इफ आई बीट समवन नाउ, ही कैन बीट मी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट कंपटीशन। वो मेरा दिल में एक आर्ट फायर आएगा, फिर इसलिए मैं वर्कआउट करेगा। अगर ताइक्वांडो में ऐसे डेफिनेटली एक फिक्स्ड चैंपियन नहीं होता है, ताइक्वांडो देयर इज नो ए फिक्स्ड चैंपियन। जो कौन ज्यादा मेहनत करता है वो आएगा चैंपियन में, इसलिए बिल्कुल डेली वर्कआउट करेगा। फिर बालिसार का ऊपर डर है, बहुत सारा डर होता है कोच का ऊपर, वो बहुत सारा पनिशमेंट देता है हमको, इसलिए वर्कआउट मन नहीं है तो भी जाके करेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि विद आइस इन योर माइंड एंड फायर इन योर हार्ट यू कैन अचीव एनीथिंग, कि दिमाग को ठंडा रखो आइस की तरह और दिल में एक आग जलाए रखो, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, डिटरमाइंड रह सको एंड मोटिवेट रह सको। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू आदीप, एंड आपके इंस्पायरिंग वर्ड सुन के हम सभी को मोटिवेशन मिल रही है। जितने भी मेंबर्स हैं जो अभी इस लाइव में हमारे साथ हैं, दे ऑल आर फाइंडिंग इट मोटिवेटेड। सो थैंक्स आदीप फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। एंड हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे पास कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी डालते रहें अपने क्वेश्चंस को, हम लास्ट के 5-10 मिनट्स में वो क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। एंड तब तक हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आदित, वी नो यू आर अ यूट्यूबर, राइट? सो वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर यूट्यूब चैनल। Basically, I'm not a YouTuber. I just post some videos regarding fitness. My Insta channel only, Insta Reels only. I thought that in during lockdown time, it's very hard to go out and maintain our fitness level. We need to look after our fitness too. We need to look after our body as well, हमारा body too. इसलिए मैं सोचा कि वर्कआउट है ना, वर्कआउट मतलब हमको खुद भी कर सकते हैं, वो मैं प्रूव किया, मतलब ये रील्स जिसमें मैं प्रूव किया हमको खुद भी कर सकते हैं वर्कआउट। इसलिए मैं ऐसे वीडियोस डाला, हमारा फैट बर्निंग वर्कआउट, एब्स के लिए, चेस्ट के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, सब एक एक बॉडी पार्ट्स के लिए वर्कआउट डाला, सबको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे छोटा छोटा वीडियोस डाला, बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आदीप के जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो हम बहुत जल्दी नीचे कमेंट में डालने वाले हैं, सो वॉच आउट फॉर दैट। साथ ही साथ आदित्य के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक हम शेयर करेंगे। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप जाके लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड इन केस अगर आपको वीडियोस बहुत ही पसंद आ रही हैं तो जरूर उन्हें रीशेयर करें, ताकि जो मोटिवेशन है, जो एक्सरसाइजेज हैं, ग्रेट वर्कआउट सेशंस हैं, वो सभी मेंबर्स तक पहुंच सकें, राइट? सो मैं जो लिंक है वो थोड़ी देर में डाल दूंगी। टिल देन आदिप हम ओके लेट्स वेट, मैं डाल ही देती हूँ, लेट मी जस्ट शेयर। ओके, सो आदिप के जो लिंक्स हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं उसमें, यू कैन जस्ट चेक। ओके, सो आदिप हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ओके सो जैसे हम अभी यूट्यूब की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हम आपके चैनल पे क्या देख सकते हैं, सो जस्ट 1 और 2 टॉपिक्स कि आप जो अपने यूट्यूब में आगे कवर करने वाले हैं, या फिर आप अपनी रील्स में कवर करेंगे? हाँ, अभी मैं बोला था ना, एक एक पार्ट के लिए मैं अभी वीडियोस ले रहे हैं। अभी मैं एक
फैट बर्निंग सर्क्यूट डाला, एक जस्ट ट्राइसेप्स के लिए डाला। अभी मैं घर का कुछ सामान लेकर क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब चेयर लेकर, फिर एक बोर्ड लेकर, एक बोतल लेकर, उसका भी इसमें अब ट्राई कर रहे हैं मैं अभी, थोड़ा और वीडियोस डालने के लिए। वो सामान यूज करके, हमारा पर्सनल प्रॉपर्टीज यूज करके, चेयर यूज करके, ऐसे बेड यूज करके। वाह वाह वाह, बिल्कुल। क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, काफी स्टेट्स हैं जहाँ पे जिम्स ओपन नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए बॉटल्स हो सकती हैं, काउच हो सकता है, बेड हो सकता है, चेयर्स हो सकती हैं, वो बहुत ही अच्छा एक इक्विपमेंट बन सकती हैं वर्कआउट के लिए। सो दैट इज अ ग्रेट आइडिया आदि। सो अगेन आई वुड लाइक टू से कि अगर आप सबको ये सब वीडियोस देखनी है, so just go and subscribe to his channel, go and follow him on Instagram, go and send him a friend request on Facebook, and he will reply back to you. He will be there to support you, and he will keep on motivating you further, right? So next हम चलेंगे आदि, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, बाकी हम जाएंगे हमारे जो लाइव के मेंबर्स हैं, विल बी आस्किंग देम व्हाट दे वांट टू आस्क, बट उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन कि कोई एक शॉर्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सभी प्लेयर्स को जो अभी हमारे साथ लाइव है। Yeah, I need to tell them success only comes to those who are willing to wait and eagerly work hard for it. सक्सेस सिर्फ उसको उनके लिए आएगा बस। तो जो कट मार के रहना, एक पॉइंट में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। हमको डायरेक्ट जाना है, वो बिल्कुल सेफ डायरेक्ट वे लेना है। उसके लिए सक्सेस लेना है तो हम वेट भी करना है। अगर एक बार ट्राई किया, हमको रिजल्ट नहीं मिला, मतलब छोड़ना नहीं है, हम वेट करना है। हमारा मिस्टेक उनमें हमारा मिस्टेक क्या है, हम पढ़ना पड़ेगा, फिर हम वो क्लियर करके नेक्स्ट टाइम वो क्लियर करके हम करना है, फिर हमको डेफिनेटली वी कैन, वो सक्सेसफुल हमको किस करेगा, बस सक्सेसफुल किसी वन डे श्योर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आदित्य के हर एक वर्ड्स इतने मोटिवेटिंग हैं कि जितने भी लाइव के हमारे लाइव सेशन के जो मेंबर्स हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा ग्रेट मोटिवेशन के साथ आज जाने वाले हैं। सो आप सभी अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखें। एंड अभी हम चलते हैं जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। सो लेट मी स्टार्ट एंड चेक कि सभी क्या क्या पूछना चाहते हैं आदित्य से। सो ओके, सो एक्सपीरियंस ऑफ आर्मी ट्रेनिंग। सो लजोया डोप के नाम से एक हमारे यूजर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है आदिप आपसे कि व्हाट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ आर्मी ट्रेनिंग लाइक। वैसे आप इसका आंसर दे चुके हैं, बट लेट्स टेक इट अगेन। या आई विल डेफिनेटली से टू हिम बिकॉज़ ही इज माय ब्रदर, इज ओके वन ऑफ माय कजिन है। क्या आई कैन टेल हिम, सिर्फ मेरा अभी ट्रेनिंग का वो एक सेक्शन नहीं स्टार्ट किया, सिर्फ एग्जाम बाकी है मेरा, इसलिए मेरा वो जो फिजिकल टेस्ट है ना, वो बोलेगा। अभी मैं टेस्ट में हम 1600 मीटर का ही टेस्ट था, वो आर्मी बेस कैम्प में था, गोवा में है मेरा सेंटर, गोवा सिग्नल्स के टीम में मैं। वहाँ जाने के टाइम मुझे बहुत सारा लेसन में सीख गया, आर्मी लाइफ कैसे होता है, आर्मी ऑफिसर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सब मैं सीख लिया वहाँ से। वहाँ से मेरे को मुझे एक चीज़ बस सीख गया, मतलब हमको रेस्पेक्ट करना है बस। हम किस को हम रेस्पेक्ट देता है, वो सिर्फ हमको दोबारा वापस नहीं देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आर्मी लाइफ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, पंचुअल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट है बहुत। बस इतना ही अभी मैं सीखा आर्मी, और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट किया मैं। ट्रेनिंग के बाद में अगर मेरा दोस्तों के चाहिए तो उसके भी एक वीडियो में डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वी ऑल विल बी वेटिंग ईगरली कि कब आदित्य की मोटिवेशनल वीडियोस भी आएंगी, कि हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड टू वर्कआउट एवरी डे, हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड, राइट। सो हमारे पास और भी कमेंट्स हैं आदित्य। बिल्कुल बिल्कुल। सो सभी कह रहे हैं वी आर ग्रेट फैंस ऑफ योर्स आदित्य, योर वीडियोस आर ग्रेट एंड ऑल आर गिविंग यू बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके, सो कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। सो अश्विन वेलकम, ग्लेन कोरिया वेलकम, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू सर। पूजा टिकेरी हेलो वेलकम, यू इट्स आल्सो ग्रेट ऑनर टू हैव यू हियर। इट्स योरसेल्फ शनावज वेलकम। Akyas Mohammed, okay, he's your brother, right? Yeah, yes Mohammed. Okay. So friends, अभी हम इस लाइव सेशन को थोड़ी देर में खत्म करने वाले हैं। इन केस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हो आदिप से, यू कैन जस्ट कमेंट देम एंड वी कैन जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes। अदरवाइज हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आदिप से, यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वी कैन वेट फॉर मिनट और 2।
ओके, सो आदिप, आई थिंक इस कमेंट को आपको ट्रांसलेट करना होगा. आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस कमेंट. चिकू का बोल के ऐसे मतलब जस्ट पॉकेट, ये भी मेरा Okay. भाई है, मेरा Okay. फैमिली मेंबर्स ही है इसमें. ओके, ग्रेट. फैमिली ही हमारी सपोर्ट है बिल्कुल हर चीज में. Yeah, from this we can understand that how much supportive is my brothers. मेरा फैमिली कितना सपोर्ट है, ये मेरा ज्वाइन किया वो सब मेरा भाई लोग है, बहन लोग है. I can understand Wow. from it. Wow. Okay, so give me a minute. मैं आदिप के सभी लिंक्स एक साथ करके अभी चैट बॉक्स. All can stay connected with Adip on all of his social media handles. So just तो अभी मैं कमेंट बॉक्स में आदिप के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक सेंड कर रही हूँ. So you can connect with him on Instagram, Facebook, and also to his YouTube channel. Don't forget to subscribe to his channel. Don't forget to like, comment, and share on all of his videos. And we have come to the end of this session. So thanks Adip for being here. It was a great privilege कि हमें एक चांस मिला कि मैं आपको इंटरव्यू कर सकूं. एंड बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें भी चांस मिला कि वो आपकी इंस्पायरिंग वर्ड्स को सुन सकें. सो वंस अगेन थैंक यू आदिप, एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है हमारे इस लाइव सेशन को. सो बाय बाय गाइस, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन. बाय बाय. Okay, bye. Take care. बाय बाय.